Okay, now, dear student, we will check our knowledge through in-text question of NCERT book. Okay, now you should have your book and check from your book. Okay, you can read a question from there and try to give answer of them. Okay, this is first question. On what factor does the resistance of conductor depend? Okay, so what should be answer of this one? You know that resistance depends on mainly three factors. I also discussed about that at first. It depends on length of conductor, how resistance is directly proportional to length. Okay, this is first point. Second, it depends on area of cross section, how resistance is inversely proportional to area. And number 3, it depends on temperature also. ठीक है, you will write only temperature. We do not have a direct relationship between resistance and the temperature. Why? Because in conductors, in semiconductors and in insulators, okay, every time resistance of wire behave differently. That's why we cannot say that is directly proportional to or inversely proportional to. You should remember this thing. It depends on temperature also. Okay, in case of conductor it vary, and in case of semiconductor it vary. Now fourth case, that is nature of material. Okay, now these four cases are very important of this question. So answer of this question is length, area, temperature and nature of material. We also discussed this question very nicely in our previous video. Okay, now question number 2, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? Okay, now read carefully this question, and this is also very easy. Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of same material? Okay, you have same material. You have two wires of same material like copper, or you can say any other example you can take, aluminum wire. Okay, same material, because resistance also depend on the nature of the material, and he is asking about the, if the nature of material are same, then what will happen? Okay, he is giving two condition to us. One is thick wire and one is thin wire. Okay, when connected to the same source, then where current will flow easily? What do you think about that? Current will flow easily in that wire where we will find resistance is very low. ओके, जहाँ पे अपोज बहुत कम होगा, जहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, वी विल फाइंड वेरी इजी करंट. ओके, करंट विल फ्लो वेरी इजीली. Then tell me about which wire has more resistance, thick wire or thin wire? Okay, now we should understand about thick wire. Okay, suppose that we have two wires. One is thick. Thick means like it. This is thick wire. Okay, and this is thin wire. Okay, in thick wire and thin wire, what is the difference between them? Difference about area. Okay, area of thick wire is larger than area of thin wire. अगर एरिया ज़्यादा है तो आपको अगर दो वायर्स मिले हैं, ठीक है, अब आप उन दो वायर्स में किसको थिक बोलेंगे, किसको थिन बोलेंगे? जिसका एरिया ज़्यादा होगा, यानी जो मोटा होगा, है ना, एरिया ज़्यादा है. इसका मतलब ये है कि थिक वायर मीन्स है जिसका एरिया ज़्यादा है, थिन वायर मीन्स है जिसका एरिया कम है. ओके, अब जिसका एरिया ज़्यादा होगा, ओके, वी नो दैट रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यानी जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा. एरिया ज़्यादा किसका होगा? फिर थिक वायर का. तो थिक वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. और जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसमें ईजिली करंट फ्लो हो सकती है. ठीक है, तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि द करंट फ्लोज मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर एज कंपेयर टू thin wire of the same material when connected to the same source. Why? Because it is due to the reason that resistance increases with decreases in area, or you can say resistance increases with decreases in thickness. ठीक है, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस कम हो गया तो करंट इजीली फ्लो हो जाएगी. यू शुड दिस शुड बी क्रिस्टल क्लियर. ओके, कि अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, याद रखना इस पॉइंट को, रेसिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब करंट को फ्लो होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, करंट विल नॉट फ्लो. अगर रेसिस्टेंस कम है तो आसानी से करंट फ्लो हो जाएगी. ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी वायर में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो तो उस वायर का रेसिस्टेंस कम होना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ मूव टू अवर थर्ड क्वेश्चन. लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट.
ठीक है, सबसे पहले ये बोलता है कि रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट वाइल द आर को आपने कांस्टेंट रखना है, आप चाहते हैं कि ये कांस्टेंट रहे, ठीक। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस, आप वी को डिक्रीज कर दे रहे हो, यू आर डिक्रीजिंग वी, ओके। टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर, ठीक है, जितना पहले था उससे आधा कर दे रहे हो। वट चेंज विल अकर इन द करेंट थ्रू इट, तो उसकी करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, आपने कुछ किसी सोर्स से वायर कनेक्ट किया हुआ है, उसका रेसिस्टेंस आप सेम रख रहे हो, दैट इज कांस्टेंट, लेकिन आप उस सोर्स का अब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर दे रहे हो, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन करंट, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके। ओके, एज वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ से हम लोग इसको कर सकते हैं, एज वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ व्हाट वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन वी कैन से आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, आर इज कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, यानी अगर आर सेम है तो आई किस पे डिपेंड करेगा, आई वी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको कांस्टेंट रखना है आपने, आर को कांस्टेंट रखे, अगर आप वी को इंक्रीज करोगे तो आई भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वी, अगर आप वी को इंक्रीज करोगे तो आई इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप वी को डिक्रीज करोगे तो आई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ रीड दिस क्वेश्चन, वो क्या बोल रहे हैं, ही इज आस्किंग अबाउट व्हेन वी डिक्रीज its potential difference, okay, if we will decrease potential difference then current will also decrease। अब जितना वहाँ डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, पोटेंशियल हाफ डिक्रीज हुआ है, तो हमारी करंट भी हाफ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, why are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal, okay, very important question, we will discuss this question, this phenomena in our upcoming topic, heating effect of electric current। in this question he is asking that electric toaster and electric iron, हमारे घर में इलेक्ट्रिक आयरन होता है ना, इलेक्ट्रिक आयरन अगर आप देखोगे जिससे आप पानी गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग तो खाना वाना सब आजकल उसी में बना रहे हैं, सारा इलेक्ट्रिक है ना। तो अगर उसके अंदर आप वायर देखेंगे, ठीक है, जो वायर होती हैं कॉइल्स के फॉर्म में आपको मिलेंगी, वो जो वायर्स होती हैं वो सारी की सारी एलॉय की होती हैं, ठीक है, मेटल की नहीं होती हैं। कॉपर नहीं मिलेगा आपको, उसमें कॉपर नहीं लगा होता, उसमें सिल्वर नहीं लगा होता, उसमें क्या लगा होता है, एलॉय लगा होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलॉय, एलॉय पता है आपको क्या होता है, एलॉय इज़ अ मिक्सर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सर बनता है तब एलॉय। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एलॉय जो हमारे हीटर में लगा होता है मेनली, वो होता है नाइक्रोम, ठीक है। अगर आप लोग इसको याद करेंगे तो दैट इज़ वेरी गुड, नाइक्रोम वायर आपको मिल जाएगा, यू कैन सर्च, ओके। नाइक्रोम वायर होता है, तो जो नाइक्रोम वायर होता है उसमें मिक्सर होता है बेटा, वो होता है निकल, क्रोमियम, ठीक है, मेनली ये दो कंपोनेंट उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ में आपको उसमें मैग्नीज, इन सब का मिक्सर होता है क्या, नाइक्रोम, ठीक है। तो मिक्सर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एलॉय एंड वी मेक सच टाइप ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन्स, है ना, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से हीट जनरेट हो जाती हो। वी हैव नंबर ऑफ एप्रेटिस इन आवर होम नाउ डेज, ठीक। तो ऐसा क्यों है कि हम लोग एलॉय के ही बना रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग सच टाइप ऑफ मटेरियल विथ मेटल, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एलॉय होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू मेटल, उनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। First reason you should remember, we will discuss later on this question also, because we have some phenomena like this, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, करंट की वजह से हीट जनरेट हो जाता है, ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको याद रखना है। सबसे पहला रीज़न आप लोग क्या याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसमें जो वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एलॉय की इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो एलॉय होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है इन कंपेयर टू मेटल्स, पहली बात। दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हो जाएगा, ठीक है, अगर कॉपर को आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वायर्स मेल्ट नहीं होते, या वी कैन से ऑक्सीडाइज, है ना, जल्दी से नहीं होते हैं ये, ठीक है। और इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है क्योंकि हम लोग उतना हीट जनरेट करते हैं उसके बाद भी उन वायर्स को कुछ नहीं होता है।
तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग उसी हिसाब से रखते हैं। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट इन कंपेयर टू नाइक्रोम बहुत कम होता है। आप है ना 200-300 डिग्री सेल्सियस पे उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, मेल्ट हो जाएगा वो। लेकिन नाइक्रोम वायर नहीं होता है, टंगस्टन वायर नहीं होता है, बिकॉज दे आर एलॉय, है ना। ये सारी चीज़ें इस वजह से यहाँ पे आपने आंसर क्या लिखना है कि कॉइल ऑफ टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉय बिकॉज ऑफ मेनली 2 रीजन। फर्स्ट थिंग, their resistivity are very high, and second thing, at high temperature they do not oxidize, and they have very long life. Okay, now next question about use the data in table 12.2 to answer the following. Okay, he is asking about the table. I think if you have book, NCERT book, you will find that table there 12.2, और उसको देख के you will give me answer of this question. First one, which among iron and mercury is better conductor? ओके, वहाँ पे आप लोगों की जो आपकी लिस्ट पड़ी है, ठीक है, आप उस लिस्ट को एक बार देख लीजिए जल्दी से। उसमें बहुत सारे मटेरियल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स लिखे हुए हैं। आई विल सेंड यू ऑल्सो। NCERT मैंने आपको पहले भी भेजा था, ठीक है। इफ़ यू नीड देन टेक्स्ट मी, की अगर आपके पास नहीं है पहला चैप्टर NCERT बुक का, तो आई विल सेंड यू, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, आप लोग क्या काम कर सकते हैं, आप उसको देखिए। उसमें देखने के बाद देखो एक चीज़ ध्यान देना, उसमें रेसिस्टिविटी लिखी हुई है। जिसकी रेसिस्टिविटी हाई है, ठीक है, जिसकी रेसिस्टिविटी क्या है, हाई है, इसका मतलब वो बहुत अपोज कर रहा है करंट को। अगर वो अपोज कर रहा है तो वो कंडक्टर ज़्यादा है या कम है, कम कंडक्टर है। अच्छा कंडक्टर आप किसको कहोगे, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाए। इलेक्ट्रिक करंट इजीली किस में फ्लो होगी, जहाँ पे रेसिस्टेंस उसको कम मिलेगा, ठीक है। तो जिसकी रेसिस्टिविटी आपको लो मिलेगी वो अच्छा कंडक्टर होगा, और जिसकी रेसिस्टिविटी आपको ज़्यादा मिलेगी वो बैड कंडक्टर होगा, यू कैन से वो इंसुलेटर होगा, ठीक है। तो अब आप उस टेबल में देख लीजिए और देखिए कि आयरन और मरकरी में से किसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है और किसकी रेसिस्टिविटी कम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट यू विल फाइंड देयर कि आयरन की रेसिस्टिविटी कम है, देन आयरन इज अ गुड कंडक्टर देन मरकरी। एंड सेकेंड वन इज विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। सबसे ऊपर कौन है, जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम है, ओके, आपको वहाँ पे लिखा होगा सिल्वर। एंड एज वी नो दैट सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ वेरी लो रेसिस्टिविटी। जिसकी रेसिस्टिविटी जितनी कम उतना अच्छा कंडक्टर, और जिसकी सबसे कम वो सबसे अच्छा कंडक्टर। नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड आई एम सेइंग वन थिंग टू यू स्टूडेंट्स, दैट अगर आप लोग सारे वीडियो देखना चाहते हैं ना, कहीं पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या करें, you go to my playlist. I also sent this message, voice message to your group also, ठीक है। आप लोग क्या करें कि प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप उन सारे वीडियो को एक बार देखिए, ठीक है, देखिए और सुनिए, डेफिनेटली यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेना बेटा। थैंक यू।